Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the online revision capsule courses. This is Pirzada Asif, Department of Physics at Sky Classes. तो बेटा क्या करना है आज हम अल्लाह के फजल से with the grace of Almighty we are going to start a new chapter that is magnetic effects of current and magnetism. तो बेटा इस मैग्नेटिज्म में बोर्ड के हवाले से जो क्वेश्चंस हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन which we are going to discuss today is write down an expression for the force experienced by a moving charged particle when placed in a magnetic field. फिर जो क्वेश्चन सेकंड डिस्कस होगा आज दैट इज गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन. And the final one, the last question which we are going to discuss today is derive an expression for the magnetic force between infinitely long parallel current carrying conductors. बेटा जिन बच्चों को प्रीवियस बोर्ड पेपर्स पे नजर होगी तो वो डेफिनेटली बताएंगे जी सर ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. That is force on a moving charged particle in presence of magnetic field. तो बेटा क्या करना है, हमें यह देखना है कि अगर आपके पास एक चार्जड पार्टिकल है, ओके, और ये चार्जड पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, से इट इज वेलोसिटी इज v वेक्टर. नाउ व्हाट बेसिकली आई एम अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड ओवर इट लाइक दिस. सपोज दिस इज b वेक्टर. सो आई रिपीट, मैंने बेटा एक चार्जड पार्टिकल लिया जो मूव कर रहा है विथ सर्टेन वेलोसिटी v वेक्टर, और इसी चार्जड पार्टिकल पे मैंने एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया, और वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो है वो जो एंगल बना रहा है, लेट दैट एंगल इज थीटा. ओके, now it was observed that if you have a moving charged particle and when it is placed in a magnetic field, तो बेटा इस पे एक फोर्स पड़ता है, we call that force as magnetic force. बेटा ज्यादा elaborate मैं इस टाइम नहीं करूंगा, I will be very much concise, I will come to the point. So याद रखो, जब भी एक चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन इट मे एक्सपीरियंस ए फोर्स, वी कॉल दैट फोर्स एज मैग्नेटिक फोर्स. नाउ मुझे देखना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स किस किस पे बेटा डिपेंड करता है. सो एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कि बेटा इस चार्जड पार्टिकल पे जो ये मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है दैट इज basically directly proportional to the amount of charge or magnitude of charge. So more is the magnitude of the charge, more it will experience the force. If it has no charge, then it will experience no magnetic force. Why? So that means एक neutral body को अगर आप magnetic field में रखोगे, that will not experience any magnetic force. Then second thing is that it is directly proportional to the speed. Speed means कि अगर चार्जड पार्टिकल हाई स्पीड से जा रहा है then it will experience more magnetic force. अगर लो स्पीड से जा रहा है तो लेस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा.
And one more factor on which the magnetic force depends, that is, it is directly proportional to the applied magnetic field. So that means more is the strength of the applied magnetic field, more is the magnetic force. Okay? So जितना external magnetic field strong होगा, उतना charged particle ज्यादा force experience करेगा. But one more factor which was experimentally found, वो ये था कि बेटा अगर मैं एक चार्जड पार्टिकल को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ले रहा हूं या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ले रहा हूं, यानी कि मैं एक चार्जड पार्टिकल को मूव करवा रहा हूं along the direction of field, then it was observed that a charged particle does not experience any magnetic force. याद रखो. So whenever a charged particle is moving in the direction of magnetic field or opposite to the direction of magnetic field, then it does not experience any magnetic force. तो बेटा लेकिन ये देखा गया अगर चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स. लेकिन मुझे बताओ ऐसा कौन सा फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, जब V और B में एंगल 0 है तो कोई भी फोर्स नहीं है, जब V और B के बीच में एंगल 90 है तो फोर्स मैक्सिमम है. मुझे बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 पे 0 होता है और 90 पे मैक्सिमम होता है? यस, दैट इज साइन. सो कैन आई से force is also proportional to the sign of angle between velocity vector and magnetic field vector. So let me put them as 1, 2, 3 and 4. तो क्या करेंगे बेटा, combining first, second, third and fourth. तो बेटा जब इन चारों को कंबाइन कर लेंगे तो यहां F जो है वो क्या निकलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B sin थीटा. यस, क्लियर. एंड यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बदले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा. इट विल बी इक्वल टू K Q V B sin theta, and experimentally this K equals to 1. So therefore the magnetic force on a moving charged particle is equal to QVB sin theta, right? So what is the expression for the force experienced by a charged particle in presence of magnetic field? QVB sin theta. So इसका मतलब हुआ मोर चार्ज मोर मैग्नेटिक फोर्स, मोर स्पीड मोर मैग्नेटिक फोर्स, मोर मैग्नेटिक फील्ड मोर मैग्नेटिक फोर्स, 90 एंगल मैक्सिमम, 0 एंगल नो फोर्स. क्लियर. नाउ बेटा इस फोर्स को हम जो हमें किसके बराबर निकला, मैग्नेटिक फोर्स हमें निकला बराबर QVB sin थीटा. बेटा इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन फाइंड आउट दिस B और आई कैन फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ B, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड. देखो बेटा कैसे हम क्या कर लेंगे, आई कैन राइट इट लाइक दिस, B इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई QV sin थीटा, राइट. तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, एक चार्जड पार्टिकल ले रहा हूं 1 कूलम का. कितने कूलम का? 1 कूलम का. और ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. और जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, मान लो वो राइट एंगल इस पे पड़ रहा है लाइक दिस. क्लियर. से दैट इज B. नाउ अगर ये एक कॉलम का चार्ज और जो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर मैं ये सारे वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, बेटा B किसके बराबर आएगा, F डिवाइडेड बाई व्हाट इज द चार्ज 1 कूलम, व्हाट इज द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एंगल
between velocity vector and magnetic field vector, it is 90 degree. Sin 90 is 1, 1 into 1 is 1. So therefore, what is magnetic field intensity? तो बेटा न्यूमेरिकली जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज बेसिकली द फोर्स. इट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स. बेटा हम ये कह सकते हैं कि एक कॉलम का चार्ज जब 1 मीटर या यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट राइट एंगल्स टू द फील्ड, तो बेटा वो कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल न्यूमेरिकली गिव अस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. So magnetic field intensity is numerically equal to the magnetic force experienced by a unit charge moving at right angles to the field with unit velocity. Yes. Now, is that clear? Now what about the unit of B? Very much important is the unit of B. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आ भी सकता है ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स में या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है. ये यूनिट ऑफ बी. ओके, आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डायमेंशंस. लेट अस सी द बोथ यूनिट एज वेल एज डायमेंशन ऑफ बी. तो क्या करेंगे बेटा, बी का यूनिट इसी फॉर्मूला से निकालेंगे. फ्रॉम दिस इक्वेशन बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी साइन थीटा. Unit of force is Newton, unit of charge is unit of charge is Coulomb. Unit of charge is Coulomb, unit of velocity is meter per second. Sin theta has no units, trigonometric functions has no units, so they have no fundamental units, so Newton second per meter per coulomb. But in SI system it is called a Tesla. So basically the SI unit of, let me write down here. So SI unit of magnetic field intensity is Tesla. Since we don't have that much time, this is basically the revision course. So I have some constraints and I have some boundaries. So मैं उतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा. वक्त ही इंशाल्लाह टाइम आएगा, आप इंशाल्लाह यहाँ आओगे. ऑफलाइन कैंपस, ऑफलाइन कोचिंग इंशाल्लाह आप ज्वाइन करोगे. वहाँ पे बहुत अच्छे एलैबोरेशन से फिर हम पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं. सो फिलहाल आप बोर्ड के लिए बेटा तैयारी करो. ये कुछ ही दिन है, 20 या 25 दिन है, तो इसमें या 1 महीना भी हम कह सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव मैं बिलीव कर रहा हूँ आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ डेज 25 है. तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस टाइम जो आपका फोकस होना चाहिए, इट शुड बी एंटायरली ऑन द बोर्ड, बिकॉज यू नो नाउ बोर्ड मार्क्स ऑल्सो मैटर फॉर JEEs एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज टेस्ला. एंड यू नो 1 टेस्ला कितना होता है? 1 टेस्ला के बदले क्या होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 टेस्ला इज 1 न्यूटन बाय 1 कूलम बाय 1 मीटर पर सेकेंड. बेटा मैं तब कह सकता हूं कि फील्ड 1 टेस्ला है जब 1 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू द फील्ड and experiences the force of 1 Newton. I repeat, मैंने 1 कॉलम का चार्ज लिया और वो मूव कर रहा है with a velocity of 1 मीटर पर सेकेंड at right angles to the field. Then अगर इस चार्जड पार्टिकल ने 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस किया, कितने न्यूटन का? 1, तो मैं कह सकता हूं मेरा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला है. क्लियर? बट यूजुअली ये टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है. आपने देखा होगा ये जो टेस्ला है इसका CGS यूनिट भी है, दैट इज कॉल्ड गॉस. और 1 टेस्ला 10 रेज़ टू द पावर 4 गॉस होते हैं. ओके, so this is the relationship between Tesla and Gauss. Now let us move to the direction of this magnetic force. How will you find out the direction of this magnetic force? तो बेटा सिंपल है, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इज QVB sin थीटा. अगर वेक्टोरियली लिखूंगा मैं, आई कैन राइट इट F वेक्टर इज इक्वल टू Q. Q इज स्केलर.
but VB sin theta can be written as V vector cross B vector because you know A cross B is equal to AV sin theta and you know जब दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं वहां जो तीसरी क्वांटिटी निकल आती है वो भी वेक्टर होती है एंड यू नो फोर्स इज अ वेक्टर. नाउ यहां पे ये भी कॉन्सेप्ट आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा. जब दो वेक्टर्स आपके पास हैं लाइक दिस, you have the two vectors and they lie in the same plane. Yes, they lie in the same plane. Then अगर इन दो को क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करोगे आप, देन जो तीसरा वेक्टर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर. यानी कि दो वेक्टर्स को क्रॉस करके दो वेक्टर्स को क्रॉस करके जो एक ही प्लेन में है, जब हम क्रॉस करते हैं वहां जो तीसरा वेक्टर निकलता है वो बेटा हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. राइट? सो नाउ I can write it like this. Say this is V vector for example. Suppose this is B vector. तो सवाल है इस चार्जड पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कहां से पड़ेगा. यू कैन यूज राइट हैंड स्क्रू रूल. अगर इनके बीच में कोई एंगल है से थीटा, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, V क्रॉस B मीन्स आप इमेजिन करो आपके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है और स्क्रू में है और आप उस स्क्रू को V से B जब आप जा रहे हो स्मॉल एंगल के साइड से, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई बेटा, एंटी क्लॉकवाइज. जब ये एंटी क्लॉकवाइज आ गई तो आप क्या कर रहे हो, आप इमेजिन करो आपके पास स्क्रू है आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो तो वो कहां जाएगा, आउटवर्ड जाएगा. सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विल बी आउटवर्ड्स. सिमिलरली अगर कोई और डायरेक्शन होगी, ऐसे होगा, इट इज V वेक्टर, इट इज B वेक्टर, देन V क्रॉस B यानी कि V से B जाना है. जब आप V से B जा रहे हो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई. देन अगेन यूज द राइट हैंड स्क्रू रूल. यू टेक द स्क्रू ड्राइवर, यू टेक ए स्क्रू को मूव करवाओ V से B ऐसे, इट विल गो इनवर्ड्स. सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इनवर्ड्स. सो जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स पड़ता है वो वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होता है. यानी कि वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. लेकिन आप याद रखोगे अगर ये V वेक्टर और बेटा B वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, देन यू कैन यूज द रूल. वी कॉल दैट रूल एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये है बेटा, नजर रखो. दिस इज थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर. Thumb represents force, first finger represents current or charge. This first finger represents the magnetic field and this middle finger represents the charge or current. आप ऐसे याद रख सकते हो. आप इन तीनों को परपेंडिकुलर रखोगे, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड चार्ज यानी कि मूविंग चार्ज, चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन या करंट जहां से, तो यहां पे यूज कर लेंगे बेटा. वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है. नजर रखो बेटा, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है. तो थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड्स. इट मीन्स यहां जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इनवर्ड्स होगा. आई रिपीट, तो चार्ज की वेलोसिटी ये है, फील्ड नीचे है और थंब इनवर्ड जा रहा है लाइक दिस. यू कैन चेक. ठीक है. सो हियर द फोर्स इज इनवर्ड्स. क्लियर? सो खैर दिस वाज अबाउट द डायरेक्शन. लेकिन एक बात आप याद रखोगे बेटा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मुझे बहुत जरूरी कहना है क्योंकि आगे जाके साइक्लोट्रॉन में ये कंसेप्ट आपको इस्तेमाल होगा. मैग्नेटिक फोर्स इज बेसिकली अ force which is also called circular force. I can write it like this. Magnetic force is a circular force. मतलब क्या हुआ बेटा इसका, बेटा ये वो फोर्स है जो हमेशा चार्जड पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में लेना चाहता है. यानी कि ये फोर्स, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये चार्जड पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट करता है लेकिन ये स्पीड को चेंज नहीं करता है.
सो याद रखोगे बेटा, जब भी चार्जेड पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा वो खाली उसको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो उसको सर्कुलर पाथ में लेगा, लेकिन उसकी स्पीड के साथ कुछ नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर चार्जेड पार्टिकल ये है, फील्ड ये है, तो बेटा इसका क्या होगा, इस चार्जेड पार्टिकल का क्या होगा, इट विल डेफिनेटली रिवॉल्व, it will go around a circular path. So that is why this force is called circular force. So it does not change the speed but only changes the path. So मुझे बताओ, जब भी एक चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा वो किस पाथ में चला जाएगा, सर्कुलर पाथ में। So can I say that यहां जो चार्जर पार्टिकल है इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है, दैट प्रोवाइड्स ए नेसेसरी centripetal force. Clear? So now let us move to the next question, that is, give the principle, construction and working of cyclotron. तो बेटा पहले मैं साइक्लोट्रॉन की डायग्राम यहां पे मैंने विजुअलाइज की है बेटा। तो आप में से अल्हम्दुलिल्लाह सब ने साइक्लोट्रॉन पढ़ा होगा। तो बेटा बेसिकली हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं। यू हैव द वैन डी ग्रेफ जनरेटर, बेसिकली अगर फाइनली देखा जाए दैट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है। सिंक्रोट्रॉन, बीटाट्रॉन एंड एक और है यहां पे साइक्लोट्रॉन। बेटा साइक्लोट्रॉन भी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर ही है। सो पहली बात, ये जो साइक्लोट्रॉन है इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। ध्यान से देखना बेटा, इंशाल्लाह मैं अश्योर कर रहा हूं आपको, अगर आप यहां पे अच्छे से समझोगे आप खुद ब खुद नोट बना सकते हो। तो बेटा दिस इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्जड पार्टिकल्स, हैवी चार्जड पार्टिकल्स। लाइट क्यों नहीं करते हैं वो आगे इसकी लिमिटेशन है, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं इस टाइम। सो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड to accelerate the heavy charged particles. Now इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? इसका प्रिंसिपल समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे बताओ, अगर एक चार्जड पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ रहा है, कौन सा फोर्स पड़ रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की टेंडेंसी होती है कि वो चार्जर पार्टिकल को स्पीड अप करे, है कि नहीं? वो उसकी स्पीड को बढ़ाता है। समझ आ रहा है? तो अगर मैं एक ऐसा कोई डिवाइस लूं कि जिसमें मैं दोनों फील्ड्स को अप्लाई करूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो बेटा मुझे बताओ होगा क्या जब आप एक चार्जड पार्टिकल पे दोनों फील्ड से अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक भी मैग्नेटिक भी? होगा क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स इसको स्पीड अप करता जाएगा, ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये सीधा टेंजेंशियली उधर चला जाएगा। तो लेकिन जब मैं मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूं तो ये इस चार्जड पार्टिकल को इस डिवाइस से बाहर नहीं करने देगा। ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स इसको मूव करवाएगा अराउंड ए सर्कुलर पाथ। अच्छा, पाथ भी मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में भी चला जा रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड का क्या काम है? यहां पे स्पीड को बढ़ाना। मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या है? इस चार्जड पार्टिकल को किसी कन्फाइनेड रीजन में रखना। वरना अगर मैं खाली इलेक्ट्रिक फील्ड डालूंगा, ये चार्जड पार्टिकल या सीट पर बम्बई वोतमुत, ये फिर ये हम कन्फाइन नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि ये चार्जड पार्टिकल किसी रीजन में कन्फाइन रहे और किसी उसी पर्टिकुलर रीजन में ये एक्सेलरेट हो। तो उसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड अप करेगा और मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में ले जाएगा। नाउ लेट अस सी इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन।
तो बेटा देखो क्या है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे, इट इज मेड अप ऑफ टू डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स लाइक दिस, ये और ये आप देख रहे हो बेटा, यहां पे आप दो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स देख रहे हो। कैन यू ऑब्जर्व देम? इसने नाम नहीं रखा है, लेट मी कॉल दिस एज D1, लेट मी कॉल दिस एज D2। सो यहां पे दो सेमी सर्कुलर चैम्बर्स दिए हैं, D1 and D2. These are hollow electrode chambers. Okay. Now इस hollow electrode chambers को आप अगर देखोगे बेटा, यहां पे और यहां पे ये टर्मिनल्स कनेक्ट हैं टू द अल्टरनेटिंग सोर्स, यानी कि इन दोनों डीज को फाइनल टर्मिनल पे, यहां पे एंड पॉइंट्स पे कनेक्ट किया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि हमने इसको अल्टरनेटिंग सप्लाई दी है। क्लियर? देन और एक चीज आप यहां देख सकते हो बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स लगे हैं नॉर्थ साउथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी पड़ रहा है परपेंडिकुलरली। सो दिस इज बी वेक्टर, राइट? दिस इज बी वेक्टर। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। और एक बात, ये जो चार्जड पार्टिकल है जिसको हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, वो सोर्स यहां पे है बेटा, ये लेट मी शो इट बाय सम अदर कलर, इससे दिखाइए। दिस इज द पॉइंट वेयर द चार्जड पार्टिकल इज, जिसको हमें एक्सेलरेट करना है, ये वो प्लेस है। तो होगा क्या बेटा, मान लो ये जो अल्टरनेटिंग है, यू नो अल्टरनेटिंग में कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें कंटिन्यूअसली पोलैरिटी चेंज होती है। अगर कुछ टाइम के लिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन बाद में ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। सो कंटिन्यूअसली इन अल्टरनेटिंग सप्लाई द पोलैरिटीज गेट चेंज्ड। सो मान लो कुछ पहले हाफ साइकिल के लिए, यू नो सपोज AC हैज टू हाफ साइकिल्स, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। मान लो पॉजिटिव हाफ में ये D1 पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, यानी कि इसका चार्ज पॉजिटिव है और बेटा इसका चार्ज नेगेटिव है। किसी और कलर से दिखाएगी, हाईलाइट कर लेंगे। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो बेटा क्या होगा, when this chamber is positive, this chamber is negative, between it there is a charged particle, let it has the positive sign. Now tell me, ये charged particle कहां चला जाएगा? Will it go towards D2 or it will go towards D1? Obviously it will go towards D2. तो electric field, you know, it is from positive to negative, तो positive charge किस में घुस जाएगा? D2 में, ऐसे। So when it goes into D2, इस पे यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ रही है। सो व्हेन इट एंटर्स इनटू D2 लाइक दिस, लेकिन जो ही ये एंटर हो रहा है, ऊपर से तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, एंड यू नो व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्जड पार्टिकल, देन ये चार्जड पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि सर्कुलर पाथ में लेता है। तो क्या होगा बेटा, जब ये इसमें चला जाएगा, आप देखो ये ऐसे पाथ में जा रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ ये कवर कर रहा है। अब बोलोगे सर ये पूरा पाथ क्यों कवर नहीं करेगा, ये इसमें क्यों नहीं चला जाएगा? क्योंकि अभी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव में नहीं जा सकता, लाइक चार्जेस रिपेल। तो होगा क्या, मैं थोड़ा ऐसे दिखा सकता हूं, एक एक्टिविटी से दिखाऊंगा। आई एम द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज D1 and this is D2. This D2 is at negative potential, this D1 is at positive potential. So I will get attracted towards D2. So जब मैं D2 की ओर अट्रैक्ट होगा तो ऊपर से मैग्नेटिक फोर्स भी पड़ रहा है, वो मुझे लीनियरली नहीं जाने देगा, बल्कि मैं इसी D2 में सर्कुलर पाथ कवर करूंगा, बट नॉट फुल बट सेमी सर्कुलर। अब बेटा इस पूरे सर्किट को ऐसे सिंक्रोनाइज किया है, ऐसे सिंक्रोनाइज किया है, ऐसे सिंक्रोनाइज किया है कि जितना टाइम इस चार्जड पार्टिकल को सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने में लग रहा है, उतना ही टाइम AC को अपनी पोलैरिटीज को चेंज करने में लग रहा है। यानी कि जितने टाइम में
चार्जड पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, उतने ही टाइम में D1 और D2 की पोलैरिटी चेंज होगी. नाउ टेल मी, अब D1 क्या बनेगा? नेगेटिव. D2 क्या बनेगा? पॉजिटिव. अब बेटा जो ही चार्जड पार्टिकल ने D2 में सेमी सर्कुलर पाथ कवर किया, अब इसको क्या होगा? अब इसको कौन खींचेगा? D1, क्योंकि D1 अब नेगेटिव है, तो जो ही ये उस में चला जाएगा फिर से इस पे मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है. इट विल नॉट गो लीनियरली बट विल गो अराउंड ए सर्कुलर पाथ. तो ये एक रोटेशन हो गई चार्जड पार्टिकल की. अब लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो कंटिन्यूअसली पड़ रहा है. सो अब दूसरे रोटेशन में इसकी स्पीड और बढ़ रही है. इट इज एक्सेलरेटिंग. लेकिन बेटा आप देखोगे जितनी जितनी इस चार्जड पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी उतना रेडियस ऑफ पाथ भी बढ़ेगा. देखना है कैसे? देख लो बेटा. सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे कितना होगा? mv²/r. चार्जड पार्टिकल पे कितना फोर्स पड़ रहा है अगर राइट एंगल्स पे है? QVB, because sin 90 is 1. So this V and this V will cancel out. Radius of path is equal to mv/qb. Mass is constant, Q is constant, B is constant. So radius of path is directly proportional to the speed. So as the speed goes on increasing, radius of path also increases. आप देख लो बेटा, यहां पे पहले रेडियस ऑफ पाथ छोटा है तो स्पीड भी कम होगी. तो रेडियस ऑफ पाथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. एंड फाइनली व्हेन इट रीचेस टू द पेरिफेरी, ये देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको यहां पे, ये डोर जैसा है. रुको मैं किसी और कलर से दिखाना चाहता हूं. ये आपको डोर यहां पे दिख रहा है कुछ सगो, ये डोर दिख रहा है आपको, ये टारगेट है, ये डोर है. तो होगा क्या? यहां पे एक डिफ्लेक्टिंग विंडो लगी है. जब पहले छोटा सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो स्पीड कम होगी. जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी रेडियस ऑफ पाथ भी बढ़ता जाएगा. और फाइनली जब ये एज पे पहुंचेगा, पेरिफेरी पे पहुंचेगा, वहां पे एक डिफ्लेक्टिंग डोर है, वहां से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये वहां से चला जाता है और यहां पे टारगेट रखा है जिसको इसको हिट करना है. दिस इज द जिस्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन. दिस इज व्हाट साइक्लोट्रॉन इज. बल छे खोचान, हम बहुत डरते हैं ये साइक्लोट्रॉन क्या है. और आप देख लो बोर्ड में इसकी कितनी ज्यादा टेंडेंसी है आने की. सो क्लियर हुआ? रेडियस ऑफ पाथ निकला इसका. सो समझ आया साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है. आई होप दैट आई डोंट नीड टू रिपीट इट. अगर आप फिर से सुनना चाहते हो यू कैन रिवाइंड इट एंड फिर से वॉच कर सकते हो. लेकिन अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल थ्योरी है, वो मैं डिस्कस करूंगा यहां पे. सो फिलहाल आपको समझ आया बेटा, इसका रेडियस ऑफ पाथ mv/qb होगा. और एक चीज हम इसका डिराइव करते हैं, दैट इज इट इज टाइम पीरियड. चलो बेटा मुझे बताओ, इस चार्जड पार्टिकल को एक पूरा सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर नहीं बोलूंगा मैं पूरा सर्कुलर पाथ बताऊंगा. बता पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड यू नो इट इज डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस मीन्स सर्कमफ्रेंस. स्पीड इज v and circumference you know it is 2 pi r divided by v, and r अभी आपने निकाला in terms of v, mv/qb. So 2 pi by v, mv/qb. So this v and this v will cancel out. So time period will be equal to 2 pi m/qb. अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. सो टाइम पीरियड जो है वो बराबर आ गया साइक्लोट्रॉन में सर्कुलर पाथ कवर करने में 2 pi m/qb. तो यहां अगर आप देखोगे बेटा, यहां r कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है. So what does that mean? Can I say that time period, चाहे एक चार्जड पार्टिकल छोटा पाथ ले चाहे बड़ा पाथ ले, दोनों केसेस में टाइम पीरियड सेम होगा. कैसे? बेटा लॉजिकल बात है, जब ये छोटा पाथ ले रहा है तो स्पीड भी कम है, जब इसको बड़ा पाथ लेना है तो स्पीड भी बढ़ रही है. सो सिंपल बह वनो तुम कशर कथ अख, मे गसुन ये पे बसपुर, ठीक छा, वन मे ये पे गसुन लाल चौक, मगर मैं चाहता हूं कि दोनों डेस्टिनीज के लिए मुझे टाइम सेम लगना चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा? ये मे ये पे बसपुर आस गसुन बह गस तेज, ये मे ये पे लाल चौक आस गसुन बह पक लोत, ताकि दोनों केसेस में टाइम पीरियड सेम आ जाए. सेम इज द केस हियर. जब रेडियस ऑफ पाथ छोटा है तो टाइम पीरियड
तो स्पीड भी कम है। जब रेडियस ऑफ पाथ ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा है। एज ए रिजल्ट टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल वेदर द पाथ इज स्मॉलर और बिगर इज सेम। मूव टू द नेक्स्ट वन। एक और प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करते हैं जो है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। बेटा काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ यस एम वी स्क्वायर। बट प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं, वी लिख सकते हैं आर क्यू बी बाई एम। यहां से देखो बेटा, वी लिख सकते हैं आर क्यू बी बाई एम, तो सबस्टिट्यूट कर लेंगे यहां पे हाफ ऑफ एम आर क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर। सो दिस एम एंड दिस एम विल कैंसल आउट, एक एम तब भी बचेगा। सो क्या निकला आंसर? आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर divided by twice m. This is the total or kinetic energy of the charged particle in cyclotron. So then this cyclotron has some limitations. उसमें limitation ये भी है कि neutral particles को इससे speed up नहीं कर सकते हैं। दूसरी limitation electrons को कुछ देर के लिए कर सकते, बाद में नहीं कर सकते। उसमें वो डिस्कशन है, रिलेटिविस्टिक मास का स्पीड बढ़ती है, रिलेटिविस्टिक मास भी बढ़ता है, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहती है। लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, आपको सिंपली क्वेश्चन आता है गिव प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। इज दैट क्लियर? अगर आप रिकैप्चुलेट करना चाहते हो, एक बार आप डायग्राम की ओर देखो क्या हो रहा है। पोल्स, दी टू डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स, okay, and this alternating current source, then polarity is continuously get reversed, so a charged particle continuously moves along a circular path and hence gets speed up. So ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए, तो इंशाल्लाह कल फिर से इस मैग्नेटिज्म पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। टुमारोज प्रोग्राम विल बी द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, टॉर्क ऑन ए मूविंग कॉइल, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो बी विद मी। अस्सलाम वालेकुम।